Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and our lecture number is 03. We will continue chapter number 5, cell cycle. Today our topic is meiosis, reduction, division. Meiosis is a type of cell division in which single cell divides into 4 daughter cells and the number of chromosomes becomes half in each daughter cell. In animal, meiosis takes place in germ cells to produce gametes and sperms, eggs, whereas in plants it takes place in spores, mother cells to produce spores. meiosis ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें सिंगल सेल जो है 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर। एनिमल के अंदर मेयोसिस जो है वो जर्म सेल के अंदर होता है, टेक प्लेस करता है और यानी गैमेट्स बनाता है, जबकि प्लांट के अंदर ये स्पोर्स मदर सेल्स के अंदर होता है और स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। Event of meiosis. Meiosis is a series of two divisions, meiosis 1, meiosis 2, which results in the formation of 4 haploid cells. meiosis जो है वो सीरीज है दो डिविजन्स की, meiosis 1 और meiosis 2, जिसकी इन दोनों सीरीज की वजह से क्या बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ते हैं meiosis 1. Meiosis 1, first meiotic division. First meiotic division is the reduction division during which the chromosome number is reduced to half. Meiosis 1 consists of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शन डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं और meiosis 1 के अंदर कितने स्टेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 पर मुश्तमिल होता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। प्रोफेज 1, it consists of the longest phase of meiosis. It can be subdivided into the following substages: haplotype, zygote, pachytene, diplotyne and dikinases. सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है meiosis का? प्रोफेज 1 है, जिसको हमने सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, लिपोटीन में, जाइगोटीन में, पैक्योटीन में, डिप्लोटीन में और डाइकाइनेसिस के अंदर। फर्स्ट है इसका लिपोटीन। During this sub-stage, following changes occur: the chromatin network break into specific number of long, thin, beaded threads called lipotyne. Each thread has two morphologically similar lipotyne in each cell called homologous structure. इस स्टेज में क्या चेंजेस होती है कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो जाता है लॉन्ग थिन बीटेड थ्रेड के अंदर, जिसको हम लिपोटीन कहते हैं। हर थ्रेड जो होता है वो सिमिलर होता है और होमोलॉगस स्ट्रक्चर भी बनता है। zygote. During this sub-stage, homologous chromosome which comes from the mother and father are attracted towards each other and their lengthwise pairing takes place. The pairing of homologous chromosome is known as synapsis, when the pair of homologous chromosomes are known as bivalent. इस स्टेज में क्या होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आते हैं और पेयर बनता है उनका, और इस पेयर को हम सिनेप्सिस भी कहते हैं और इस पेयरिंग को हम यानी कि इस मेथड ऑफ पेयरिंग को हम सिनेप्सिस कहते हैं और पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम बाइवेलेंट कहते हैं। पैक्योटीन, द सिनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच bivalent decreases and the chromosome uncoiled and separate. The separation is however incomplete and the pair chromosomes are in contact with each other at one or more points called gastrita. Each homologous chromosome is split longitudinally except in the centromere region. Now each bivalent is composed of 4 chromatids, therefore is known as bivalent thread. पैक्योटीन में जो अट्रैक्शन होती है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, इस तरह क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनके दरमियान क्रोमोसोम के हर जोड़े के मेंबर एक दूसरे से या एक से ज़ायद मकाम पर मुंसलिक हो जाते हैं। इन जो पॉइंट्स हैं उनको हम चेस्ट मेटा भी कहते हैं।
हम असल क्रोमोसोम को अलहदा हो जाते हैं, इसमें असल क्रोमोसोम अलहदा हो जाते हैं और सिवाय सेंट्रीमियर वाले हिस्से के अब हर बाइवैलेंट 4 क्रोमोटिड्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए हम इसको बाइवैलेंट थ्रेड कहते हैं। डिप्लोप्टीन homologous chromosome exchange their parts of chromatide at chesmata. This exchange of segments of chromatids at chesmata between the homologous chromosome is called crossing over. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं चेस्टमेटा पर अपने क्रोमोटाइड्स को, और इस एक्सचेंज को जो चेस्टमेटा पर होती है क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। नंबर 4 है आपका डिप्लोटीन हमने पढ़ लिया। नंबर 5 पढ़ेंगे हम डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर whereas meiotic apparatus spindle is completed. Chesmata moves towards the centromere, moves towards the end of the chromosome like zipper. ये हमारा लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, इस मरहले में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियाई होती है, वो गायब हो जाती है, जबकि स्पेंडल फाइबर बनने लगते हैं और क्रोमोसोम के आखिर में जिप की तरह पहुंच जाते हैं और इस मेथड को हम, इस टाइप की मूवमेंट को हम टर्मिनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ चेस्टमेटा इज नोन एज टर्मिनाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस क्रोमेटिड स्टिल रिमेन कंपैक्ट एट द एंड। ठीक है, ये हमारा जो है प्रोफेज 1 जो है कंप्लीट हो गया। हम पढ़ते हैं मेटाफेज 1। फॉलोइंग चेंज अकर इन दिस फेज। The bivalent line up at the equatorial plane, the centromere of each centrosome attaches with the same fiber of spindle. मेटाफेज में क्या होता है, बाइवेलेंट जो है वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर सेट कर लेते हैं और जो कि अपने सेंट्रीमर से आधा स्पेंडल फाइबर्स में मुंसलिक हो जाते हैं। एनाफेज 1 at this stage, 1 chromosome from each a member of homologous pair bivalent begins to separate and move towards its respective pole by the contraction of spiral fiber. The actual reduction occurs at this stage because half of the number of chromosomes moves to each pole. Moreover, as a result of crossing over, the two chromatids of chromosome do not resemble with each other in the genetic terms. एनाफेज 1 में असल जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक क्रोमोसोम के एक जो मेंबर होता है अलग होकर अपने पोल्स की तरफ हरकत शुरू कर देते हैं और ये हरकत जो है स्पेंडल फाइबर्स के सिकुड़ने की वजह से होती है। दरअसल इस मरहले में क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है, घट जाती है, आधी रह जाती है, जबकि आधे क्रोमोसोम अपने पोल्स की तरफ और दूसरे आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ हर क्रोमोसोम के क्रोमोटाइड्स भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम टेलोफेज 1। The nuclear membrane formed around the chromosome at each pole and the chromosome become uncoiled. The nucleus repairs and thus two daughter nuclei form. टेलोफेज 1 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा जाहिर हो जाती है और क्रोमोसोम खुलना शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियस पर दोबारा जाहिर हो जाते हैं। इस तरह दो डॉटर सेल या दो डॉटर सेल्स जो हैं वो या दो डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाते हैं। इस तरीके से हमारा मियोसिस का ये अमल न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। Telophase may or may not be accompanied by cytokinesis and daughter cells formation. Meiosis 1 में टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू होता है और नहीं भी होता है, इस तरह डॉटर सेल वजूद में आ जाते हैं। Interphase following telophase 1, if this stage occurs, there is a short period called interphase before meiosis 2. It is similar to interphase between meiotic division except the DNA replication does not occur. Replication of DNA is unnecessary because each chromosome already has 2 chromatides. इंटरफेस का अमल जो है वो टेलीफेज
इंटरफेस टेलोफेज 1 में के बाद ये फ़ौरन होता है, मुख्तसर वक्फे का माबेन ये मरहला होता है। ये माइटोसिस 2 के आगाज़ से पहले ज़रूर पज़ीर होता है। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन इसमें डीएनए की नकल नहीं बनती क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमोटाइड्स पहले से ही मौजूद होते हैं। इस तरह हमने मियोसिस 1 आप के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब मियोसिस 2 से हम स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।